زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے نے ایسی بات کہی تھی. بیٹے نے جب اتنی بات سنی ہے رو کر کے کہا تھا یا رسول اللہ میں تو مجبور ہوں, اے آقا میں تو مجبور ہوں, آپ تو دونوں عالم کے مالک و مختار ہیں. یا رسول اللہ میں آ نہیں سکتا ہوں, لیکن آقا آپ تو آ سکتے ہیں. یا رسول اللہ میں نہیں آ سکتا ہوں, لیکن آقا آپ تو مختار ہیں, آپ آ سکتے ہیں. اے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہی چلے آئیے, اس لیے کہ میرا جانے کا وقت ہو گیا ہے. یا رسول اللہ کہیں ایسا نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ یار بے بسی کی بہت مر جائے. اے آقا میں یہ چاہتا ہوں میں دنیا سے جاتے جاتے آپ کے چہرے انور کو دیکھ لوں, آپ کی زیارت کر لوں, آپ کے چہرے انور کو دیکھ لوں. جیسے بیٹے نے اتنی بات رو کر کے کہی تھی. باپ سنتا ہے, سننے کے بعد اس کا دل بھی پسیج جاتا ہے, اس کا دل بھی پسیجتا ہے, تڑپ کر کے کہتا ہے, سینے سے لگاتا ہے, لگانے کے بعد کہتا ہے اے میرے بیٹے بتا تجھے کس چیز کی ضرورت ہے, اے میرے بیٹے بتا تجھے کس چیز کی ضرورت ہے. بیٹے نے کہا ابا مجھے اسی چیز کی ضرورت ہے, مجھے رب کے حبیب کی ضرورت ہے. اے میرے ابا جان مجھے بلا دیجئے, میرا جانے کا وقت ہو گیا ہے, میں دنیا سے جا رہا ہوں. اے ابا جان میرے حبیب کو بلا کر اس کا چہرہ دکھا دیجئے. میں جاتے جاتے یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے محبوب کا چہرہ دیکھ لوں, میں اپنے نبی کا جلوہ دیکھ لوں, میں اپنے نبی کا چہرہ دیکھ لوں. جیسے باپ نے اتنا سنا ہے, سننے کے بعد گھر سے قدم کو آگے بڑھایا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلانے کے لیے جاتا ہے. ادھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام صحابہ اکرام کی جماعت کے ساتھ آپ چلتے ہیں, چلنے کا ارادہ کرتے ہیں. آپ جیسے قدم بڑھاتے ہیں ادھر باپ قدم بڑھاتا ہے. باپ جاتا ہے نبی کو بلانے کے لیے, آقا صحابہ کی جماعت کے ساتھ آ رہے ہیں, آقا جماعت کے ساتھ آ رہے ہیں, صحابہ کی جماعت کے ساتھ آ رہے ہیں. باپ چلتا ہے, چلنے کے بعد کچھ دور جانے کے بعد اس کے قدم رک جاتے ہیں. جیسے اس کا قدم رکتا ہے, بیٹے نے کہا ابا اب کیا ہو گیا ہے, اے میرے بابا جان اب کیا ہو گیا ہے, آپ کیوں رک گئے ہیں. باپ نے کہا اے میرے بیٹے کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے دھکا دے دیا جائے گا, کہیں ایسا تو نہیں مجھے بھگا دیا جائے گا, کہیں ایسا تو نہیں کہ دشمن کے گھر آنے سے انکار کر دے. بچے نے کہا تھا اے میرے بابا جان تو نے میرے حبیب کو جانا کہا ہے, تو نے میرے محبوب کو دیکھا کہا ہے. اے اللہ اے ابا جان سن لیجیے, آپ کو ان کی چوکٹ پہ جانا آپ کا کام ہے, میرے گھر تک آنا میرے محبوب کا کام ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت, مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بیٹے نے کہا بابا جاؤ نا, ان کی چوکھٹ پہ جانا آپ کا کام ہے, میرے گھر تک آنا, میری چوکھٹ تک آنا میرے محبوب کا کام ہے. باپ گیا بلانے کے لیے. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ادھر سے تشریف لا رہے تھے, صحابہ اکرام کی جماعت کے ساتھ تشریف لا رہے تھے. لیکن اچانک بیٹے نے اٹھنا چاہا, اٹھا, اٹھ کر کے اپنی ماں سے کہا ماں میرا کملی والا آ رہا ہے. ماں نے جب اتنی بات سنی, سننے کے بعد فوراً اپنی نظر کو دروازے کی طرف ڈالا, دیکھی دروازہ خالی. ماں نے سوچا ہو سکتا ہے بیٹے کو بے ہوشی ہے, اس لیے کہہ رہا ہوگا کہ میرا کملی والا آ گیا ہے. ماں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا, ماتھا چوم کر کہتی ہے اے میرے بیٹے کوئی تو نہیں ہے دروازے پر, کوئی تو نہیں آیا ہے دروازے پر, دروازہ خالی ہے. بیٹے نے پھر کہا ماں میرا کملی والا آ رہا ہے, میرا کملی والا آ رہا ہے. ماں نے جب اتنا سنا ہے, سننے کے بعد پھر کہتی ہے بیٹے دروازے پر کوئی نہیں ہے, دروازے پر کوئی نہیں آیا ہے, دروازہ تو بالکل خالی ہے. لیکن بیٹے نے پھر تیسری مرتبہ کہا ہے اے میری ماں سن لیجئے, میں کہہ رہا ہوں میرا کملی والا آ گیا ہے, میرا کملی والا آ رہا ہے. ماں نے بیٹے کے پیر کو چھوا ہے, ماں نے بیٹے کے پیر کے تلوں کو چھوا ہے تو دیکھتی کیا ہے کہ بیٹے کے پیر ٹھنڈے ہو رہے ہیں, روح جسم سے نکل رہی ہے, پیروں کے ذریعے سے روح نکل رہی ہے, نکلنا شروع ہو رہی ہے. ماں نے بیٹے کو سینے سے لگایا, سینے سے لگانے کے بعد کہا بیٹے ایسی بات نہ کہا کر, اے میرے بیٹے ایسی بات نہ کہا کر. بیٹے نے پھر کہا ہے اے ماں میں کہہ رہا ہوں میرا کملی والا
वाला आ रहा है। माँ ने कहा था अरे मेरे बेटे देख दरवाजे भी खाली है, अरे मेरे बेटे देख चौखट भी खाली है, अरे मेरे बेटे देख घर के आंगन भी खाली है, कोई नहीं आया है। बेटा कहता है माँ मैं कह रहा हूँ मेरा कमली वाला आ रहा है, अरे माँ मैं कह रहा हूँ कि मेरा कमली वाला। माँ ने कहा है मेरे बेटे तुझे कैसे मालूम हो गया कि तेरा कमली वाला आ रहा है, तुझे कैसे पता चल गया है कि तेरा कमली वाला आ रहा है, तेरा कमली वाला आ रहा है। बेटे ने कहा था अरे माँ मैं बता रहा हूँ मेरा कमली वाला आ रहा है, अरे माँ हवाएं बता रही है कि कमली वाला आ रहा है, अरे माँ फिजाएं बता रही है कि कमली वाला आ रहा है, अरे माँ खुशबू बता रही है कि मदीने वाला आ रहा है, अरे माँ घर के माहौल बता रहे हैं कि मदीने वाला आ रहा है, अरे माँ मैं कह रहा हूँ कि देख मदीने वाला आ रहा है। जैसे बेटे ने कहा उठकर बेटे ने कहा अरे माँ देख चौखट में मदीने वाला आ गया है। माँ ने जब चौखट पर देखा था, माँ ने जब अपनी नजर को चौखट की तरफ डाला है तो देखा नहीं, देखती क्या है कि चौखट खाली नहीं है, चौखट उसकी है, जलवा मदीने वाले का है। माँ जब अपनी नजर को चौखट की तरफ डालती है तो देखती क्या है कि चौखट तो उसकी है लेकिन जलवा मदीने वाले का नजर आ रहा है। जैसे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, बच्चा उठना था, आका को देखकर बच्चा उठने की कोशिश किया, उठना चाहा लेकिन उठ ना सका। इतने में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौड़ लगा दी। दौड़ लगाने के बाद आका उसके सर को अपने बाजू में रखने के बाद आप सीने से लगाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को सीने से लगाया, सीने से ऐसा लगाया ना जैसे लगता था कि कोई माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर बैठी हुई है। अब बच्चे की बात गौर से सुनना। बच्चा कहता है आका कि मेरी दोस्ती सच्ची है ना, मेरी दोस्ती सच्ची है। आका फरमाते हाँ तेरी दोस्ती सच्ची है। बच्चा फिर कहता है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ये दोस्ती ये मोहब्बत काम भी आएगी? आका फरमाते हाँ काम आएगी लेकिन तू मेरा कलमा पढ़ ले। आका फरमाते हैं हाँ काम आएगी लेकिन तू मेरा कलमा पढ़ ले। जैसे इतनी बात कही, बच्चे ने बाप की तरफ देखा, देखने के बाद पूछा अब्बा जी बताइए आपकी क्या राय है? बाप ने बेटे की तरफ देखा, देखने के बाद कहा सारी जिंदगी इसी की इश्क में तूने गुजारी है, जाते जाते इसी का होकर जा। बाप ने जब इतनी बात कही है, बेटे ने माँ की तरफ नजर डाली, माँ से पूछा माँ तेरी क्या मर्जी है, तेरी क्या राय है? माँ ने कहा बेटे मैं तेरी माँ हूँ। माँ तो बेटे की हर राजीपन पे रजा रहा करती है, हर काम से राजी रहा करती है। जिस काम से बेटे खुश रहा करते उस काम से माँ भी खुश रहा करती है। बेटे मैं तेरी हर रजा पर राजी हूँ। माँ की जब इतनी आवाज सुनी है बेटे ने फौरन अपने लबों को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान के पास लाया। लाने के बाद फरमाता है ऐ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आप बताइए आपकी क्या राय है? आका ने अपने लबों को बच्चे के कान के नीचे लेकर गए हैं। बच्चे से कहा ऐ मेरे बेटे, ऐ बेटे जल्द से जल्द तू कलमा पढ़ ले, जल्द से जल्द तू कलमा पढ़ ले। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया है। जैसे कलमा पढ़ाया कि उसकी रूह जिस्म से निकल जाती है, उसकी रूह जिस्म से निकल गई है, उसका इंतकाल हो गया है। जैसे उसका इंतकाल हुआ है उसे जमीन पर लिटाया गया है। लिटाने के बाद लिटाया गया है, जब लिटाया गया तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब वहां से वापस होने लगे हैं। जैसे वापस होते हैं तो बेटे के बाप ने हाथ को पकड़ा है और कहा ऐ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ आका अब इसे छोड़कर कहां जा रहे हैं? अब इसे छोड़कर कहां जा रहे हैं? अब इसे भी आप अपने साथ लेकर चले जाए, अब इसे भी अपने साथ लेकर के जाए। सारी जिंदगी ये आपके साथ रहा है, जाते जाते आपका कलमा पढ़ के गया है। ऐ आका अब इसे भी आप साथ में लेकर के जाए। आका फरमाते हैं ऐ सिद्दीक इसके जनाजे को उठाओ, इसकी मैयत को उठाओ। अब इसका जनाजा इसकी चौखट से नहीं उठाया जाएगा बल्कि इसका जनाजा तो मोहम्मद की चौखट से उठाया जाएगा। ऐ सिद्दीक अब इसका जनाजा इसकी चौखट से नहीं बल्कि मुस्तफा की चौखट से उठाया जाएगा। आका सिद्दीक अकबर उस जनाजे को उठाए हैं। उठाने के बाद घर लेकर आए हैं और घर लेकर आए हैं। लाने के बाद उसे गुस्ल दिया गया है, उसे नहलाया गया है, गुस्ल दिया गया है। नहलाने के बाद
जब गुस्ल दे दिया गया, जब जनाजे को लेकर चलने लगे हैं, जब जनाजा को लेकर चलने लगे हैं, आखिरी बात है, जब जनाजे को लेकर चलने लगे हैं, जब जनाजा लेकर चलना शुरू किए हैं तो लोग देखते क्या है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जनाजे में पंजों के बल चल रहे थे, पंजों के बल चल रहे हैं। तमाम सहाबा इकराम देख रहे हैं। देखने के बाद जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जनाजे में पंजों के बल चल रहे थे और वहां पहुंचने के बाद कब्रिस्तान में जब पहुंचे हैं, कब्रिस्तान में जब आप उतरे हैं तो आपके माथे पर पसीना आ गया था, पसीना आ गया है। लोग कहते हैं ठंडियों का मौसम था, हल्की हल्की ठंडी पड़ रही थी, लेकिन उस ठंडियों के मौसम में आपके माथे पर पसीना था, पसीना आ गया था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर पसीना आया है। जब दफन से वापस हुए हैं, जब मिट्टी देकर वापस हुए हैं तो सहाबा इकराम फरमाते हैं, हज़रत उमर फरमाते हैं, ऐ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर खता माफ हो तो एक सवाल कर लूं, ऐ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर खता माफ हो तो एक सवाल कर सकता हूं। आका फरमाते हैं बताओ कौन सा सवाल है, आका फरमाते हैं बताओ कौन सा सवाल है। तमाम सहाबा इकराम फरमाते हैं, हज़रत उमर फरमाते हैं, ऐ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस आशिक का जनाजा जा रहा था, जब इस आशिक का जनाजा जा रहा था तो आप पंजों के बल चल रहे थे, मामला समझ में नहीं आया है, ऐ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी बात तो ये है कि सर्दियों के मौसम में आपके माथे पर पसीना कैसा था, ऐ आका ये ठंडी हल्की हल्की ठंडी पड़ रही थी, सर्दियों के मौसम में आपके माथे पर पसीना कैसा था। आका फरमाते हैं, ऐ सहाबा सुनो सुनो, ऐ सहाबा सुनो सुनो, जब मेरे आशिक का जनाजा जा रहा था सारे फरिश्ते जमीन पर आ गए थे, उसकी वजह से जमीन पर पूरा कदम रखने की जगह नहीं थी। ऐ सहाबा सुनो, पूरे मेरे महबूब का जब जनाजा जा रहा था, जब मेरे आशिक का जनाजा जा रहा था तो उस जमीन पे इतने फरिश्ते आए थे कि पूरा कदम रखने की जगह नहीं थी। और जब उसको कब्रिस्तान में उतारा गया, जब मेरे माथे पर पसीना आया था, इसलिए मेरे माथे पर पसीना आया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हुराने जन्नत को भेज दिया था कि जाओ देखो मेरे महबूब का जलवा देख लो। जितने हुरानी जन्नत आती थी वो मेरे कदमों पे आती थी, उन्हीं का वजन था कि जो मेरे माथे पर पसीना आ गया था। और दूसरी बात यह थी कि मेरे माथे के पसीने उसके कब्रिस्तान में इसलिए टपकाए जा रहे थे कि जब फरिश्ते आए उससे सवाल करने के लिए, तो जब वो फरिश्ते आए उससे सवाल करने के लिए तो पसीने की खुशबू बता दे कि इसे सोने दो, ये कोई गद्दार नहीं बल्कि मुस्तफा का वफादार नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं इसलिए पसीना मेरा टपकाया गया था, मेरे माथे पर पसीना इसलिए आया था, हुराने जन्नत जितनी भी आई थी मेरे कदमों पर आई थी, उन्हीं का वजन था कि जो मेरे माथे पर पसीना था। और इसलिए माथे के पसीने इस कब्रिस्तान में टपकाए गए थे ताकि जब फरिश्ते सवाल करने के लिए आए ना तो खुशबू बता दे कि कोई गद्दार नहीं बल्कि मुस्तफ़ा का वफादार सो रहा है। सोने दो मुझे, कोई गद्दार नहीं, मुस्तफ़ा का वफादार सो रहा है। मेरे मिल्लत के नौजवानों जरा सोचो तो सही, नबी से इश्क करोगे तभी हर इबादत काम आएगी। अगर जर्रा बराबर भी नबी की मोहब्बत में शक हुआ ना तो ईमान से चले जाओगे, सारी नमाजें बेकार कर दी जाएगी, सारी इबादतें मुंह पे फेंक दी जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब तक दुनिया में रहे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत करें। इसलिए आज बोलने का मूड बड़ा अच्छा बना हुआ था, लेकिन अभी हमारे बाद एक बेहतरीन खतीब आपके इलाके के माशाअल्लाह सबसे अच्छे खतीब, उभरते हुए सितारे, बहुत अच्छे खतीब को अभी आप लोगों को समाप्त करना है। इसीलिए मैं अपनी तकरीर को यही से खत्म करना चाहता हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जितनी बात कही है उस पर सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह, और उसके बाद सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मेरे कहने में आप लोगों को सुनने में जो कुछ गलती हुई हो अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे महबूब के सदक़े में माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह।